Next, a 0.50 gram sample of group 2 metal M was added to 40 cm cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid in excess. Equation given है. Metal reacts with HCl forming metal chloride plus hydrogen gas. Calculate the amount in moles of hydrochloric acid present in 40 cm cube of 1 mole per dm cube HCl. तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1 मोल पर dm cube का मतलब होता है 1 mole is present in 1000 cm cube. Therefore, how many moles would be present in 40 cm cube? तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 1000 इंटू 1. जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दे विल बी कैलकुलेटेड टू बी 0.04 moles. So 0.04 moles of hydrochloric acid are present in 40 cm cube of 1 mole per dm cube HCl. Next, when the reaction had finished, the resulting solution was made up to 100 cm cube in a volumetric flask. A 10 cm cube sample of the solution from the volumetric flask required 15 cm cube of 0.05 mole per dm cube sodium carbonate solution for complete neutralization of the remaining hydrochloric acid. Write an equation for the complete reaction of sodium carbonate with hydrochloric acid. सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Na2CO3 aqueous plus 2 moles of HCl aqueous giving us 2 moles of NaCl aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid. ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन विद HCl. Next, calculate the amount in moles of sodium carbonate needed to react with the hydrochloric acid in 10 cm cube sample from the volumetric flask. अच्छा, अब 10 cm cube sample जो है इसमें जो रिएक्शन होगा वो किस पे बेस करता है? इन्होंने क्या लिया है? 15 cm cube of 0.05 mole per dm cube sodium carbonate solution. तो 0.05 in 1000 cm cube. How many moles in 15 cm cube? तो ये हो जाएगा 15 divided by 1000 multiplied by 0.05. जब इसको कैलकुलेट करेंगे this will give us a value of 7.5 into 10 to the power of minus 4 moles. So these are the moles of sodium carbonate needed to react with hydrochloric acid. Next, calculate the amount in moles of hydrochloric acid in the 10 cm cube sample. अब Na2CO3 is to HCl का रेशियो जो है 1:2 है. इसकी वैल्यू है 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4. तो HCl हो जाएगा 2 इंटू 7.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4. This will give us a value of 1.5 into 10 to the power of minus 3 moles of HCl in the 10 cm cube sample. Next, calculate the total amount in moles of hydrochloric acid remaining after the reaction shown in equation 1. अच्छा, जो बचा था उसको इन्होंने डाइल्यूट किया था, राइट? और डाइल्यूट किया था अप टू 100 cm क्यूब. उसमें से 10 cm क्यूब निकाला था. तो 10 cm क्यूब में जो आपके मोल्स आए थे वो आए थे 1.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3. तो 100 cm क्यूब में जो टोटल HCl डाइल्यूट हुआ था उसकी वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 upon 10 into 1.5 into 10 to the power of minus 3. This will give us a value of 1.5 into 10 to the power of minus 2 moles. Next, use your answers to A. एक आंसर था 0.04 and B4 1.5 10 power minus 2 to calculate the amount in moles of hydrochloric acid that reacted with 0.5 gram sample of M. Okay, तो हमारे पास जो वैल्यू मौजूद थी 0.04 मोल्स की वैल्यू मौजूद थी हमारे पास
और 0.04 में से जो रिएक्ट किया वो था जो बच गया रहा था, नॉट रिएक्ट किया, 1.5 इंटू 10⁻⁻²। तो जब 0.04 में से आप माइनस कर देंगे ये वैल्यू, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.025 मोल्स। These are the moles that reacted, moles of HCl that reacted with M, और 0.5 grams of M। ये आपके पास क्वांटिटी ऑफ HCl आ गई जो कि मेटल से रिएक्ट की। नेक्स्ट, use your answer to 5 and equation 1 to calculate the amount in moles of M in the 0.5 gram sample। अच्छा, अब M इस टू HCl का रेशियो था 1:2, और HCl के मोल जो पार्ट 5 में कैलकुलेट किए हैं वो है 0.025। तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, 0.025 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो दिस विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ 0.0125 मोल्स। ये आ गए मोल्स ऑफ m, ठीक है, मोलर रेशियो से। कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ m एंड आइडेंटिफाई m। अब मास ऑफ m जो है वो है 0.5 ग्राम्स, 0.5 ग्राम्स। मोल्स ऑफ m जो है 0.0125 मोल्स हैं। तो हमारे पास जो है n इज इक्वल टू m अपॉन एम आर है, हमें एम आर निकालना है, या ए आर इन दिस केस, ठीक है ना, ए आर निकालना है। तो ए आर वुड बी इक्वल टू मास अपॉन मोल्स विच विल बी 0.5 डिवाइड बाय 0.0125। इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास ए आर ऑफ मेटल एम का 40। ए आर ऑफ एम इज 40, और पीरियड टेबल जब हम देखेंगे तो मास 40 जिस मेटल का होता है वो मेटल है कैल्शियम। नेक्स्ट, ammonium iron 2 sulfate has a relative formula mass of 284। Define the term relative formula mass। relative formula mass basically MR को कहते हैं, ठीक है ना। It is the mass of all the atoms in a compound compared to 1/12 the mass of a C12 atom। ठीक है, सारे एटम्स जो मौजूद हैं कंपाउंड में उनके मासेस को ऐड करेंगे, और इन कंपैरिजन टू 1/12 द मास ऑफ अ C12 एटम। और C12 एटम क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि C12 का मास जो है वो होल नंबर में है, ठीक है, चाहो तो जगह है तो वो भी लिख सकते हो। C12 is the only atom having a mass in whole numbers, ठीक है ना। इसका मास 12 है, 12 जो है वो 1 होता है। तो बेसिकली इसको होल नंबर में रखने के लिए आप C12 से कंपेयर करते हो। अगर कोई और ऐसा एलिमेंट का आइसोटोप होता है जिसका होल नंबर में मास होता है तो उससे भी कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। कार्बन 12 इज द ओनली आइसोटोप जिसका मास जो है वो होल नंबर में है। Mode salt is the hydrated form of ammonium iron 2 sulfate। X represents the number of moles of water in 1 mole of the salt। A student wanted to determine the value of X। 0.784 grams of the hydrated salt was dissolved in water and the solution was acidified। All of the solution was titrated with 0.02 mole per dm potassium manganate। 20 cm³ of potassium manganate was required for complete reaction with the Fe2 plus ions। Use changes in oxidation numbers to balance the equation for the reaction taking place। Okay, अब इसमें क्या करना है हमें, देखो
हमारे पास जो है रिएक्टेंट साइड पे MnO4 माइनस है, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालो तो ये +7 आता है, और Mn2 प्लस में +7 से ही जा रहा है 2 + 2, तो देयर इज अ गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अच्छा, आयरन 2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू आयरन 3, ठीक है, तो इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैंगनेट गेन करेगा वो कहाँ से आएंगे, वो Fe2+ लूज करेगा, तो मैंगनेट को 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो Fe2+ को लूज करना होगा, तो 5 मोल्स इसके हो गए, 5 मोल्स Fe3+ के हो गए अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंगनीज या मैंगनीज Mn2+ आयन जो है वो एक ही रहेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे Mn का कोई मोलर कोएफिशिएंट नहीं लगा हुआ है, राइट। अच्छा, अब H पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, देयर आर 2 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट, इट्स नॉट 2, 4, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास राइट साइड पे हम लिख देंगे 4 मोल्स ऑफ वाटर, और 4 मोल्स ऑफ वाटर से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया 8 H पॉजिटिव, तो उसको बैलेंस करने रिएक्टेंट साइड पे मोलर कोएफिशिएंट ऑफ H पॉजिटिव हम लगा देंगे 8, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन जो है वो बन गई, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस 8 H पॉजिटिव गिव्स Mn2 प्लस 5 मोल्स ऑफ Fe3 प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर। ये हमारी बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन हो गई फॉर दिस reaction. Next, state the role of Fe2+ ions in this reaction. Fe2+ ions provide electrons, right? They are providing electrons. When they are providing electrons, they are acting as reducing agents. ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे provide electrons and acting as reducing agents. ये है role of Fe2+ ion in this particular reaction. Next, calculate the amount in moles of manganate ions that reacted. अब रिएक्शन हुआ है 20 cm³ का और मैंगनेट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोल्स, so 0.02 मोल्स in 1000 cm³, how many moles in 20 cm³, तो ये हो जाएगा 20/1000 into 0.02, so this will give us a value of 4 into 10 to the power of -4 moles. So these are the amount of manganate ions that reacted with the Fe2+ ions in this method. Next, calculate the amount in moles of Fe2+ ions in the sample of salt. तो अब आपके पास जो मोलर रेशियो है वो है 1:5, तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैंगनेट थी 0.02 थी और वॉल्यूम थी 20, उससे मोल्स आ गए 4 into 10 to the power of -4, तो दैट इज 0.0004। अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.002 मोल्स, ठीक है, क्योंकि 1:5 का रेशियो, तो यहाँ पे लिखते हैं MnO4 माइनस इस टू Fe2+ का मोलर रेशियो है 1:5, इसके मोल्स हो गए 4 into 10 to the power of -4, Fe2+ के होंगे 5 into 4 into 10 to the power of -4, ये हो गया 0.002 moles, ठीक है, these are the moles of Fe2+ ions present. अच्छा, calculate the relative formula mass of NH4 twice FeSO4 twice dot XH2O। अच्छा, अब रिलेटिव फॉर्मूला मास निकालने के लिए इन्होंने हमें मास ऑफ द सॉलिड दिया हुआ था, ठीक है, तो लेट्स रेफर टू द मास ऑफ द सॉलिड एंड देन मोल्स आपके पास हैं, तो N इज इक्वल टू M/mr, तो मास अपॉन मोल्स विल गिव द वैल्यू ऑफ द mr, तो मोल्स तो जो है 0.002 है, ये याद रखेंगे। मास देखते हैं वापस जाके सवाल के शुरू में, इन्होंने क्या दिया हुआ है 0.784 ग्राम्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये लिखा हुआ है 0.784 ग्राम्स, तो अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 0.784 ग्राम्स इन्होंने दिया है आपको मास,
और आपके मोल्स जो हैं वो हैं 0.002। N equals m upon mr. mr will be equal to mass upon moles. मास है 0.784 डिवाइड बाय 0.002। तो जब आप करोगे 0.784 डिवाइड बाय 0.002, ये आपको रिलेटिव फार्मूला मास की वैल्यू दे देगा 392। ठीक है, 392 दे देगा। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो 392 में से आप क्या माइनस कर दोगे? आप अमोनियम, आयरन और सल्फेट की वैल्यूज इसमें से माइनस कर दोगे। तो जब आप अमोनियम आयरन टू सल्फेट की वैल्यू विदाउट वाटर कैलकुलेट करते हो एमआर की, वो आती है 284। तो 392 हाइड्रेटेड है, 284 एनहाइड्रस है। जब ये माइनस करोगे तो डिफरेंस आता है 108 का। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 108 डिवाइडेड बाय 18 जब हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 6। therefore x in this formula is 6। तो 6 moles of water are present as water of crystallization in the hydrated ammonium iron 2 sulfate।